College Life Hacks. My name is Soni and I'll be your host for today's session. Today we have a very special guest, Mr. Ayush Banka. He is a graduate from Shriram College of Commerce, Delhi, and from his outstanding academic achievements and his diverse internship and impactful roles in organization, Ayush brings a wealth of experience to inspire us all today. I encourage you all to actively participate and ask questions. Let's make the most out of it. Let's give a warm welcome to Mr. Ayush Banka. It's been a You pleasure of mine to be here. My full name is Ayush Banka, and this year I have graduated from the prestigious Sri Ram College of Commerce, University of Delhi. SRCC have always been my dream college, and graduating from there, it's a dream come true for me. And afterwards, talking about my career experiences, I've been doing quite a few internships in my second and third year. I've been associated with EY, Paytm, Urban Company, and I worked in different profiles as well. Luckily, I got into strategy, operations, research, HR, and many other profiles like sales and marketing as well. And summing that up, I have been a LinkedIn creator as well. I've been creating content on LinkedIn from the past 2 years, I would say. And luckily, there is a good fan following base that I have by now, which is 33K. Good to be there. And some of the achievements which I have till now is I've been featured in Hindustan Times. I've been featured by a few of the news channels as well. That's all about me. Thank you. many congratulations for all the featured articles that you have been into. Let's start with your academic achievements and dedication are truly inspiring. Could you share us some key moments or experiences that influenced your decision to pursue a career in commerce? Like, how did you Sure. choose like commerce? I assume most of the people here are from CBSE background only. So in CBSE, we know that after 10th, we have to choose whether we have to take science, commerce, or arts, right? When I was in my 10th class, I know that I was very clear that I'm good with numbers. Okay, ठीक है, क्योंकि मेरे मैथ्स में I was able to score very good marks in maths without putting that much efforts. तो मुझे ये realize हो गया कि चलो ठीक है, Ayush is good with numbers. I thought कि let's figure it out कि कौन से field में there is more about numbers. I found it कि commerce is the one field जिसमें there is accounts in which you have to put in lots of numbers. Then comes economics, उसमें बहुत सारे formulas, and again comes number, and you have maths as well. Commerce is the one field जहाँ पे काफी numbers का use होता है, and afterwards as well, let's say after 12th, there are many options like CA, CS, CFA, in which there are lots of numbers. I thought, if you're good at someone and you know this, right, why not give it a try? ठीक है, अगर आपको पता है कि ये आपकी strength है, just go for it now. That's how I chose commerce. This is the one reason. Another is my elder brother. He told me, see, you know the reality, you know the background from where we come from, and you know the place where we live, right? 90% plus आता है तो science ही लेते हैं. I'll give my example. In my class 10th, we were somewhere around 100 people in our class. जिसमें से 12 बच्चों के 90 plus आए थे, and I was one of them. I scored 92% in my class 10. Out of those 12, 11 took science, and I was the only one to go for commerce. I mean, it was very hard decision for me from where I come from, क्योंकि as I told you कि यहाँ लोग सिर्फ if you got more than 90%, then you have to go for science. ऐसा यहाँ पे एक norm बना हुआ है. I was very proud कि मैंने वो norm को break किया. I was very proud कि what my elder brother told me कि आगे जाके ये फायदे हो सकते हैं commerce लेगा तो I'm मतलब बहुत अच्छा लगा कि after 5 years, 11th, 12th and 3 years of my graduation, मैं यहाँ पे हूँ. I think मेरा वो decision काफी wise था, and I was very clear with my strengths. Again, if you are clear with your strengths, and if you know कि आगे जाके आपको कहाँ land करना है, it becomes very easy कि what you have to choose in your life. Right. Like I still remember when I was in school, this was the only trend. Like the top achievers will go to science, and then the middle achievers will go to commerce, and then the rest of them who got nothing, they will True. go to art. But Yeah. these days, things are changing. Like 90% student is also going to arts. Like it's I mean, now. keeping the noises of that society away from you is very important here. क्योंकि वो सोसाइटी की बार बार बाहर से आवाज आएगी कि यार इतना अच्छा है पढ़ने में तो साइंस ले. वो जो टैग है ना, अच्छा पढ़ना और साइंस, ये दो को जो क्लब कर दिया जाता है हर बार, आई थिंक इट्स वेरी बैड टू बी ऑनेस्ट. ये कॉमर्स और आर्ट्स जैसी फील्ड के लिए बहुत ही गलत है. बट दैट्स व्हाट वी डू, राइट? वी आर हियर टू ब्रेक द नॉर्म्स, राइट? That's what I did, and that's what many people here did. Now things are changing. Like now people are going forward it. Okay, Yeah. that's wonderful. And you know,
Moving forward, you have had the opportunity to work with the prestigious organizations such as Paytm, EY, Urban Company. Could you share some insights and takeaways from your internships? Sure. Like as I told you that I come from a very rural areas. I've been in Renuput. It's a very small town in near Varanasi, Uttar Pradesh. To be honest, I was not very clear about what internships are, how they work, and कैसे वो मिलती हैं, right? When I entered the college, I was lost in my first year, to be honest. I was not very clear कि मुझे क्या करना है, how will I get into these things. But when I saw people कि अच्छा ऐसे करते हैं, then I thought कि यार सब कर रहे हैं, why not try my hands into it as well. I just give it a try. मैंने पहले एक दो स्टार्टअप्स में काम किया, फिनो कंट्रोल. I've been in there for you as well. I realized कि if you have to थोड़ा प्रोफेशनल और अच्छा डेवलपमेंट चाहिए एट अ स्केल, यू हैव टू वर्क विद अ डिसेंट कंपनी, और वो तभी आएगा जो कंपनी अभी वेल ग्रोन मार्केट में हो गई, उसके साथ काम करना पड़ेगा. ओके, आई ट्राइड सर्चिंग फॉर सम गुड फर्म्स. Fortunately, I got into Paytm, followed by EY, then lastly Urban Company. I got into these three firms and in a different profile. So I was very lucky कि मुझे सारी कंपनीज में अलग अलग प्रोफाइल मिली, क्योंकि कंपनीज मिलना मेरे हिसाब से इजी है, डिफरेंट प्रोफाइल्स मिलना हार्ड है. अगर आपका एचआर में एक्सपीरियंस है तो अगली कंपनी भी कोशिश करेगी आपको एचआर में ही रखे, राइट? बट मेरे साथ ही नहीं हुआ. मैं पेटीएम से मैंने एचआर का एक्सपीरियंस लिया, देन आई गॉट इनटू EY एज अ रिसर्च इंटर्न, then I got into Urban Company as a strategy intern. I got into different companies in different profiles. That मुझे उससे काफी बूस्टअप मिला कि ओके ठीक है, कंपनी आर ट्रस्टिंग मी कि चलो ये किसी भी फील्ड में काम कर सकता है. तो वहां से मुझे दो तीन चीजें जो काफी अच्छी सीखने को मिली, एंड आई थिंक एवरीवन शुड लिसन टू दैट. प्रोफेशनलिज्म आया मेरे अंदर. आई वुड से पेटीएम के बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स होते थे. यू हैव टू लॉग इन बाय 10:30 एंड दे लीव यू बाय 6:30. जो प्रोफेशनलिज्म होता है लाइफ में और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है. दे विल नॉट गिव यू वर्क बिफोर 10:30 और आफ्टर 6:30. दे विल वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर डेडलाइंस कि अगर ये अलॉट हुआ है तो उस समय वो करना ही है, एंड दे विल अलॉट यू उतना ही काम जितना आप एक दिन में कर पाओ, ठीक है. देन इन अर्बन कंपनी आई गॉट टू नो अबाउट हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बेसिकली, क्योंकि मेरा वहाँ स्ट्रैटेजी इंटर्न था, तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस. तो वो करना वहाँ पे सीखा. एंड देन EY का एक्सपीरियंस मेरा काफी आई वुड से वियर्ड था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि EY इज द कंपनी जो इन तीनों में सबसे अभी बड़ी चल रही है, राइट? आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मेरा सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा, बट वहां पे थोड़ा सा मेरा मोनोटोनस एक्सपीरियंस था, क्योंकि बीइंग अ वेरी ह्यूज फर्म, वहां पे आपको एक बार काम दे दिया जाता है, दिन भर आपको काम करना है. देयर विल नॉट बी एनी इंटरेक्शन विद द मैनेजर्स और द सीनियर व्हिच यू हैव. वो थोड़ा मुझे अजीब लगा, बट आई रिस्पेक्ट दैट. बीइंग अ सच अ बिग कंपनी, यू विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ एवरीवन. दैट्स ऑल राइट. दैट्स ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस in these three firms. Like the one key takeaway that you can take from this is, if you want to learn, go for the startups. If you want True. to earn money, then in that case you go for the larger firms. Yeah. The one Fino Control that I've mentioned, that's my first company which I've worked with. After working with that only, I got into these three firms. Somewhere or the other, Fino Control helped me a lot, because वहाँ पे I got in as a BDE, Business Development Executive. Then I got promoted 4 times. I become manager, I become senior manager, and then I finally became the secretary of the company, which is the highest most position there. That kind of boosted of my morale, that if I can be the highest most position of a company right in my first year, तो अगले 2 साल तो और कुछ अच्छा ही करना है ना. अगर आप पहले ही इतना ऊपर जा चुके हो या फिर सोच रहे हो, तो उसके बाद तो आगे, being a human, आप हमेशा आगे क्या सोचोगे, right? You'll not see downwards. Right. What you did special, like how you got these many promotions in just 1 year? Like what was your strategy? What was your achievements? What you did special? हाँ, I'll tell you, there are only 2 things which I am very clear कि जो ये मेरे पास थी और उसकी वजह से मुझे मिला. One is curiosity. I was very curious. कुछ भी हो रहा है, I want to get into it. अगर मुझे नहीं आता, still I want to get into it. जैसे I will tell you one example. I was not very good at communication skills right in my first semester, because being come from a rural area, नहीं उतनी अच्छी इंग्लिश होती है लोगों की. Okay, but still जैसे I was in a part of NSS society, तो उसका एक इवेंट आ रहा था, they want someone. So I applied for that. Fortunately, I don't know how I got selected in it. NSS वो भी SRCC का, I was anchoring उसका इवेंट. I thought कि यार जिस चीज के लिए मैं अपने आप को सोचता था कि आई एम नॉट गुड एट इट, वहां मैं एक इवेंट होस्ट करने जा रहा हूँ. दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी उस टाइम पे, ठीक है. That curiosity, और second one is commitment. I was very committed in each and everything I got into it, and
दैट आई नॉट से, दैट आई नॉट शो, बट आपको वो मेरे काम से दिख जाएगा। कमिटमेंट आपको बताई नहीं जाती है, वो शो होती है, राइट? आपके वर्क से आप किस तरह से एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो। आई थिंक दीज टू आर द मेन थिंग्स, क्यूरियोसिटी एंड कमिटमेंट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यू डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस, मे बी यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल, और आपके पास बाकी सारी चीजें भी नहीं होती हैं। सो वो सारी चीजें फिर वर्कआउट करती हैं। जैसे मेरे लिए क्यूरियोसिटी, कमिटमेंट, मोटिवेशन टू बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स, अगर नहीं भी मैं मेरे प्लान्स वर्कआउट कर रहे हैं, स्टिल यू आर मोटिवेटेड, तो वो आपको डिफरेंशिएट करता है क्राउड से। क्योंकि वी नो आजकल लोग थोड़ा सा भी नहीं आउटपुट आता है तो हार मान जाते हैं, राइट? बट इफ यू आर स्टिल मोटिवेटेड, आउट ऑफ दोस 1000 में से अगर आप 2 हो ना, तो वही मोटिवेशन फिर आपको कहाँ से कहाँ लैंड कराता है, यू नेवर नो दैट। You made like 2.2 lakhs revenue for the in the first Yeah, year? I did 2.2 lakh revenue for the company right in my first year only. From where did you get the idea? Like you had Huh. some reference, some guidance? We have been very strictly told that this is our target and we have to achieve it. And being the senior manager of the company, you know that if you are a leader, then you have to lead from the front, right? Being the senior manager, which is the highest most person of the company, I have to lead everyone from the front. Then only interns, then only the employees which are working in the company will stay motivated and it will work. अगर leader अच्छे से करेगा तभी उनको भी motivation आएगी. Okay, if my leader can do, then I can also do, right? I have to lead from the front. That's why I have been committed to the company. Like I have been working 5 to 6 hours in a day. I have been reaching out to different people. I have been posting all day along LinkedIn. फिर मैं लोगों को reach out कर रहा हूँ, तो I'll be having a conversation with them कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको जो हमारा प्रोडक्ट था वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी मतलब उस समय ऐसा हो गया था, ऑन ए डेली बेसिस आई एम टॉकिंग टू समवेयर अराउंड 130 to 150 पीपल ऑन कॉल, मेल, लिंक्डइन, देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म। मतलब 4-5 प्लेटफॉर्म को यूज करके एंड आई हैव बीन इन अ रूम 5-6 घंटा बैठा हुआ हूँ, सिर्फ ये कर रहा हूँ। अगर मैं अभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे मैंने वो कर लिया, बट आई थिंक वही उस समय जो कमिटमेंट पुट इन हो गया, और फिर एट द एंड 6 महीने के बाद जब देखा ओके आई हैव जनरेटेड इतना रेवेन्यू, तो थोड़ा प्राउड फील हुआ कि चलो ठीक है, जितने भी टाइम, कमिटमेंट और एफर्ट्स डाले थे 6 महीने में, वो 5-6 घंटे रोज के, वो इससे सामने आ रहे हैं और कंपनी ने उसको अप्रिशिएट किया। तो दैट्स व्हाट वी वांट, अप्रिसिएशन, राइट? देयर इज मनी, ये सारी चीज अलग है और अप्रिसिएशन की वैल्यू अलग है। दैट आई गॉट इट बेसिकली। Okay. And like, how did you manage these many calls in a single day? Like, you had any platform, tools, or what you had? Like, I basically planned out my day. I wake up at 9 to 10 somewhere around. फिर मैं 12 बजे से काम करना स्टार्ट करता था एंड 12 से 4 आई वर्क। फिर आई ट्राइड कि दोपहर में मैं जितने भी कॉल्स, जितने भी मीटिंग्स है, वो सारी चीजें कर लूँ। फिर रात को आफ्टर 8 और 9 आई गो टू लिंक्डइन। फिर वहां पे मैं अपना कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करता था, क्योंकि वी नो कि लोग रात को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, रात को लोग कॉल्स लेना प्रेफर नहीं करते हैं। तो फिर रात को लिंक्डइन, इंस्टा या फिर और भी फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पे एक्टिव रह के जो भी मैंने पोस्ट किया, उस पोस्ट के थ्रू जितने भी लोगों ने मेरे को रीच आउट किया, फिर मैं जिनको समझता हूँ कि ओके दीज कैन बी आर पोटेंशियल क्लाइंट्स, मैं उनको रीच आउट करके उनसे कॉन्वर्जेशन करना। दिस इज हाउ आई डिड। दोपहर और शाम को कॉल्स और मेल्स, and रात को it's all about social media platforms that I have been to. like such an inspiring dedication. Thank you so much. Also, could you tell us more about that Vitsala vision, like making India financially literate? Can you tell Sure. us about a particular incident or interaction that motivated you to take that cause? Sure. Vitsala is one of the society that is founded by late Shri Arun Jaitley ji. I joined college in 2020. Vitsala has been already there from 4 years. I joined Vitsala in 2020. One thing which I realized right in my first year, that I am unable to manage my finances. My father is sending me 4,000 in a month. Then वो कभी मंथ के 20th डे भी खत्म हो जाते थे, कभी 25th पे। Then I realized कि यार मेरे पास तो पैसे हैं और तब भी मेरे को हैंडल करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स से अ वर्कर जिसके पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, वो कैसे मैनेज करता होगा अपने फाइनेंस? उसके पास तो बहुत सारी चीजें है ना, उसको अपना फैमिली का भी टेक केयर करना है, उसके पास बच्चे भी होंगे तो उनकी स्कूल फीस, देयर एंड मेनी अदर एक्सपेंसेस, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे? मैंने फाउंडेड आउट कि यार इंडिया का फाइनेंशियल लिटरेसी जो रेट है, जो अभी आज का भी रेट है, इट्स ओनली 27%। ठीक है, और इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, बहुत ग्रो कर रहा है, बट स्टिल ओनली 27% पीपल नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस। तो बाय मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, व्हाट आई मीन कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप उसको कैसे खर्चा कर रहे हो वही आपको नहीं पता है। या तो आप किसी दिन सारा ऐसे उड़ा दे रहे हो,
आप अगले दिन पूरा सेव कर ले रहे हो. सो इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट. अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 40 रुपीज एक्सपेंड करोगे, आप अनदर 30 रुपीज सेव करोगे, आप अनदर 20 इन्वेस्ट करोगे, और जो 10 बचा उसको आप सोचोगे कि ये चलो ठीक है ये पर्सनल यूज के लिए मैं ले लेता हूँ. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इंपॉर्टेंस है. फिर आई फाउंडेड आउट कि चलो वित्तशाला सेल है, और फॉर्चुनेटली मैं उसका पार्ट भी हूँ. तो वहां से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला. एंड अनदर थिंग वित्तशाला प्रोवाइड्स इज इंटरैक्टिंग विद पीपल. आई एज अ पर्सन बहुत मुझे अच्छा लगता है लोगों से इंटरैक्ट करने का. इफ आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी विद इंटरैक्टिंग विद 100 पीपल ऑन अ डेली बेसिस, व्हाई नॉट. ठीक है. और मुझे सिखाया भी जा रहा है कि दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू कन्वे टू द पीपल. फिर रोज मीटिंग्स हो रही है, रोज सेशंस हो रहे हैं विद डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस. तो उसमें जाके इंटरैक्ट करना इट्स वेरी गुड. अगर आपके पास नॉलेज है और आप दूसरे को बता रहे हो उस चीज के बारे में, तो व्हाट्स बेटर देन दैट, राइट. एंड वित्तशाला का हर साल एक और प्रोजेक्ट होता है. मैंने अभी पोस्ट भी किया था. मेनी ऑफ यू व्हिच आर हियर ऑलरेडी नो कि प्रोजेक्ट उत्तरा के नाम से वी हैव बीन टू उत्तराखंड फॉर अ वीक. हम वहां जाके ऑन ग्राउंड काम करके आते हैं. ऑन ग्राउंड वी इंटरैक्ट विद पीपल, वी टॉक टू देम, वी लिसन देयर प्रॉब्लम्स एंड वी प्रोवाइड विद देम हैंडी सॉल्यूशंस कि कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो. एंड जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं और भी जो गवर्नमेंट आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लाई हैं, आप कैसे उसका यूज कर सकते हो. दीज आर ऑल द थिंग्स. मतलब बहुत सारे जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई सुविधाएं और हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, ये सारी चीजों से उनको बताना, उनसे फिर रिस्पॉन्स लेना और उनके चेहरे पे एंड पे स्माइल और सेटिस्फैक्शन देना. सो दैट्स व्हाट वी वर्क फॉर. और उसी से रोज मोटिवेशन मिलता था कि अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा, एंड में अप्रिसिएशन मिला. अगले दिन फिर मोटिवेटेड आएंगे, फिर वो अप्रिसिएशन और वो स्माइल लेके जाएंगे. टेकिंग अवे दैट स्माइल मोटिवेटेड मी लॉट. एंड वही मोटिवेशन करते करते मैं एंड तक 3 साल वित्तशाला में काम किया. मैंने आई बीन जूनियर एग्जीक्यूटिव इन माय फर्स्ट ईयर. Then I promoted to deputy coordinator in my second year, and then I got secretary general of the cell, which is the highest position once again. I got in there in my third year. So in 2 companies, you got so many promotions and got onto higher positions. Very. Fortunately, God's grace. But do you still think like this is a very noble cause? Like everyone should be aware of financial education, and we don't have any education, no courses, nothing. Like these days, there are many courses, but only the working people are taking those courses. Right. Schools, they don't know about anything. True. So That's why this year we have. This year we have planned कि हम बहुत सारे मिनिस्ट्रीज से कोलैबोरेट करेंगे, विच इज एजुकेशन मिनिस्ट्री, चाइल्ड लेबर मिनिस्ट्री. इससे कोलैबोरेट करने पे वी थॉट कि अगर इससे हम कोलैबोरेट करें तो वी कैन एक्सपैंड द लेवल ऑफ वित्तशाला टू अनदर लेवल. हमें वित्तशाला का लेवल बेसिकली नहीं बढ़ाना है, हमें फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल इंडिया का बढ़ाना है. दैट्स आवर एम इज. ठीक है. तो हमने सोचा कि इस बार हम कोलैबोरेशंस करेंगे थोड़ा सीनियर अथॉरिटीज के साथ, तो थोड़ा ज्यादा हमें फ्रूटफुल होगा. बाकी अदर देन दैट हमने इसीलिए 4 प्रोजेक्ट्स निकाले, चारों विंग्स को कवर करने के लिए. तो वी नो कि बच्चे हैं सबसे पहले, देन देयर आर स्टूडेंट व्हिच इज स्टडिंग आउटसाइड, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए और यूनिवर्सिटीज के बच्चे हो गए. देन देयर आर पीपल व्हिच इज वर्किंग, राइट. वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स फॉर ऑल ऑफ देम. और चौथा प्रोजेक्ट हमने निकाला जो हम ऑन ग्राउंड जाके समझाएंगे, व्हिच आई टोल्ड ये प्रोजेक्ट उत्तरा है. वेरी डिफिकल्ट, राइट. एंड एज यू राइटली सेड कि आजकल ये लोग सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी को सिर्फ वही लोग जानते हैं जो थोड़ा वेल एजुकेटेड हैं, जो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, राइट. तो इसीलिए हम प्राइवेट स्कूल्स को टैप नहीं करते हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल्स को टैप करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों का लेवल क्या है और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों का लेवल क्या है. आवर मेन एम इज टू टैप गवर्नमेंट स्कूल्स, बट वी डू सम विजिट्स इन प्राइवेट स्कूल एज वेल, क्योंकि सारे प्राइवेट स्कूल्स अच्छे नहीं होते हैं. जैसे मेरा एक था, वो था प्राइवेट, बट इट इज नॉट दैट गुड. Very good. Like because children are getting pocket money, college students are getting money from their parents, internships, and like the working people are getting their salary. Right. Do you like also teach something about investment, or like where do you invest, or just spending? Matlab, we give a very basic idea about how investments. We told them about stock market, Nifty, and very basic stuff. We don't, मतलब हमें अभी उन्हें क्रिप्टो ये सब चीज के बारे में नहीं बता रहे, क्योंकि हमें पता है क्रिप्टो का थोड़ा सा डाइसी सा फ्यूचर चल रहा है. हाँ, क्रेडिबल चीजें ही बता के आते हैं कि कैसे वो स्टॉक मार्केट, ये सारे जो बेसिक, जो हमें पता है कि ये इनका फ्यूचर थोड़ा सिक्योर है, हम उनको यही इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बता के आते हैं. अदर देन दैट वी टोल्ड देम अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आपको 100 रुपए हर साल जमा कराने से 10 साल बाद 2 लाख रुपए मिल रहा है, तो व्हाई नॉट टेक इट. अगर कोई आपको पैसा दे रहा है, अगर सरकार आपको पैसा देना चाहती है, तो लेने में क्या बुराई है. हम सीधा ये मैं आई गिव इट द सेम लाइन, इफ समवन इज गिविंग यू मनी, तो लेने में क्या बुराई है, राइट. मनी इज एवरीथिंग फॉर अस. About it, people are not aware. That is the only.
That's awareness is the main key here. So that's what we do. Aware. Very good job. Like, and going forward, how do you manage your time? Like, how do you balance academic, professional, personal commitments? Do you have any tips? Like, because everyone is struggling with their work and personal life. Work. What do you do? Thank you for your question. This is a very good question, and the one of the main things here is prioritizing your things. If you have 4 things, let's say my example, if I have academics, internships, my personal hobby, and let's say my professional hobby, which is let's say LinkedIn. So अगर मेरे पास 3-4 चीजें हैं करने के लिए, you have to be very sure कि आपको let's say आज Saturday है, तो आज क्या करना है. If I have decided कि मेरे पास 4 चीजें हैं और आज मैं 2 ही कर पाऊंगा, तो आज मैं 2 ही करूंगा. कोई इसकी वो श्योरिटी नहीं है कि आपको रोज चारों चीजें करनी है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रायोरिटाइज कैसे करते हो. अगर परसों मंडे है तो मुझे पता है कि मंडे को एकेडमिक्स और इंटर्नशिप्स का काम ज्यादा रहेगा, तो मैं उस दिन उस पर फोकस करूंगा ना. फिर ट्यूसडे थर्सडे 5 दिन वो चलेगा, फिर वीकेंड पे फिर मैं इस पे फोकस करूंगा. तो अगर आपके पास 5 चीजें हैं तो आपको 5 चीजें रोज नहीं करनी है. हमें क्या लगता है कि हम जितनी चीजों में इन्वॉल्व है ना, हमें वो रोज करनी है, नहीं तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे बीच में. ये ऐसा नहीं है. आपको उसको स्ट्रीमलाइन करना है, उन 5 चीजों को एक साथ सिंक करना है. अगर आप कोई चीज मंडे को कर रहे हो, तो आप अगर सोचो कि अगर आप उसको वेडनेसडे को करते हो तो कोई हैम्पर होता है क्या. अगर होता है तो रोज करो, अगर नहीं होता है तो फिर ऐसे चीजों को स्ट्रीमलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जस्ट फिगर इट आउट राइट इन द मॉर्निंग कि क्या इंपॉर्टेंट है उस दिन के लिए. अगर आज आपकी जरूरत पढ़ाई को ज्यादा है, तो जस्ट गो एंड वर्क आउट ऑन योर एकेडमिक्स. देयर इज नो पॉइंट वर्किंग ऑन योर प्रोफेशनल या फिर पर्सनल लाइफ उस दिन. संडे को खेल लेना, ठीक है. जैसे मेरा पैशन अगर क्रिकेट है तो आई प्ले ऑन संडे, कोई बात नहीं. अगर आज मेरी जरूरत यहाँ ज्यादा है तो आई विल डू दैट ओनली. प्रायोरिटाइजिंग आई थिंक इज द मेन एंड ओनली थिंग हियर. अगर आप प्रायोरिटाइज करना सीख गए, आपको पता चल गया कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज अगर आज आपने नहीं की तो कल शायद वो बिगड़ सकती है. अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो आई थिंक दैट्स इट. और कुछ आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है. Right. So that was my another question, that how you include your sports thing in your life. You already answered that question. Moving forward, what are your aspiration and career goals? Like, what are you planning for your future? Is there any specific industry or roles you hope to explore? Currently, I'm planning to join consulting sector only. As I mentioned in my introduction as well, that I have been to many profiles, which is HR, strategy, operations, sales, marketing, content, and everything. Basically, I have experienced all the profiles, and after experiencing let's say around 10 profiles, I found that strategy is something or problem solving something जहाँ पे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट लाई करता है. एंड कंसल्टिंग सेक्टर इज द वन जहाँ पे इस फील्ड की काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन होती है. I thought of joining the consulting sector only, and I'll be joining it from 19th of July. I have an offer from a company. मैं join करूँगा from 19th onwards. I'll be joining as a consultant there. उस company के बाद I am planning to do MBA right in my next year only. I'll go for MBA in 2024. फिर आफ्टर MBA अगेन अगर MBA में मेरा इंटरेस्ट कुछ और फाइंड हुआ तो ठीक है, और एल्स आई विल कंटिन्यू विद कंसल्टिंग सेक्टर ओनली, बिकॉज बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है कंसल्टिंग. आई लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आई लव टू इंटरैक्ट विद पीपल, आई लव टू टॉक टू पीपल, आई लव टू लिसन टू देम. और वही एट द एंड जो मैंने बोला, स्माइल एंड सेटिस्फैक्शन, दैट्स व्हाट फॉर आई लिव फॉर. एंड आई वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट व्हिच इज रियल. आजकल लोग इम्पैक्ट वर्ड इतना यूज करते हैं कि उसकी कोई वैल्यू रह नहीं गई है. इंस्टेड ऑफ इम्पैक्ट आई यूज द वर्ड रियल इम्पैक्ट. क्या आप रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो? इफ यस देन गो फॉर इट, इफ नो देन जस्ट लीव इट. You got your clear goals, but what advice would you give these students, like, who are listening to you and eager to make the most of their time in college? What do you advise them? See, I'll be very clear. 2 चीजें होती हैं, या तो आपको अपना इंटरेस्ट पता होता है या तो नहीं पता होता है. मेरे केस में मुझे पता था, आपके केस में लेट से आपको नहीं पता है. आपको पता है तो इट्स वेल एंड गुड, आपको उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए. लेट से आपको नहीं पता है और आपको नहीं पता है तो आप 2 चीजें कर सकते हो. आप उसको एक तो ढूंढने की कोशिश करोगे. ढूंढे आप कैसे जा सकते हैं? आप कोर्सेज कर रहे हो, इंटर्नशिप्स कर रहे हो, फॉर्चुनेटली आपको मिल गया तो आप उससे कंटिन्यू करोगे. और लेट से आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे हो तब भी नहीं पता चल रहा है, तो बोलते हैं ना, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो किसी भी चीज को पकड़ लो और उसके साथ कंटिन्यू करो. राइट? एवरीवन हैव हर्ड सम ये कोट कहीं ना कहीं. जस्ट स्टिक विथ एनीथिंग. आपने जिस भी सेक्टर में काम किया है, जिस भी फील्ड में काम किया है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं भी है, बट जस्ट गो विथ इट. आपका उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्या पता अगर आप थोड़े हाई लेवल पे, आप जब इंटर्नशिप में आपको इंटरेस्ट नहीं आया, क्या पता आप जॉब करने जा रहे हो तब आपको इंटरेस्ट आ जाए. जस्ट गो फॉर एनीथिंग दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंस्ड इन योर पास्ट.
जिस भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है उसको पकड़ लो और उसके साथ वर्कआउट करना चालू करो। लेट्स से 1 साल काम किया, 1.5 साल काम किया, तब भी इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है, दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, देन चेंज योर फील्ड। फील्ड्स की कमी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस सिर्फ एक फील्ड में नहीं होगा। आपने, आई एम श्योर सबने 1 से 2 फील्ड में, मिनिमम आजकल लोग 2 से 3 फील्ड्स में इंटर्नशिप करते हैं, राइट? तो आपने पहली फील्ड उठाई थी, अब दूसरी कर लो, दूसरी नहीं फिर तीसरी करेंगे। लाइफ बहुत बड़ी है, अगर आप अभी सिर्फ 21 ईयर्स में इतना सॉर्टेड होने का सोचोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर 22 साल में इंसान सॉर्टेड हो जाएगा तो फिर व्हाट्स लाइफ यार, दैट्स नाउ, ये ऐसे वर्क नहीं करता है। I also agree with this. I also like explored 3 of the domains, and या in this domain, looking from 1 year. Let's see where it goes. या ट्रू, So मतलब वही, अगर नहीं पता चल रहा है तो जस्ट स्टिक विद एनीथिंग और कंटिन्यू विद दैट ओनली। देयर मतलब, और ऐसा लगता है कि यार ये सामने वाला सॉर्टेड है। हाँ, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको लगता है कि सामने वाला सॉर्टेड है बहुत, जैसे मैं सॉर्टेड साउंड कर रहा हूँ, बट उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स और बहुत ज्यादा अपना ब्रेन वॉश किया, तब जाके मैं थोड़ा सा भी सॉर्टेड साउंड कर रहा हूँ। बट देयर आर पीपल, मोर देन 99% पीपल ना सॉर्टेड नहीं होते हैं। आइदर दे स्टिक टू एनीथिंग, और वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट इन करके अपना इंटरेस्ट जबरदस्ती ढूंढते हैं। तो जस्ट आप सामने वाले से कंपेयर मत करो कि यार ये सॉर्टेड है, मेरी लाइफ तो बहुत खराब चल रही है, या फिर मेरा कॉर्पोरेट तो बहुत ऐसा चल रहा है। जस्ट डोंट थिंक दैट सब लोग एक ही लेवल पे हैं, everyone is on the same level. Just stick with anything जो आपको लगता है कि आगे आप कर पाओगे, and just go with the flow. That's it. that was a very long talk, but it feels like it's very short. Okay, moving to the Q&A, because obviously I'm asking the question from the starting. They also, I think they have many questions with them. So with the Q&A, Sure, take my whole day. I'll be happy to interact with all of you. Go on, Ruchita. I think, hi Ruchita. Hello. Nice to have you on board today, and it was really nice to know that a guy from a rural area and he made to SRCC. So my question to you is, how was your journey and what strategies were there to make it to SRCC? Talking about the journey and strategies which I followed to get into SRCC, I'll be very honest. Before getting 98.4 percentages in my class 12, I was not knowing about SRCC. 13th July 2020 को मेरा रिजल्ट आया। टिल 12th जुलाई मिडनाइट मुझे SRCC के बारे में कुछ नहीं पता था कि SRCC बस ये पता था कि है कोई कॉलेज जो इंडिया का टॉप है। मुझे ये नहीं पता था कि उसका इतना बड़ा नेम और फेम है। आई वॉज नॉट लुकिंग एट दैट फाइनल गोल, फाइनल डेस्टिनेशन। एंड आप सबको पता है, अगर हम कोई चीज पे वर्कआउट कर रहे हैं तो प्रेशर जिस चीज से पड़ता है ना, वो फाइनल चीज को देख के पड़ता है। अगर जैसे मैं कंपनी में था, अगर मैं स्टार्टिंग से देखता कि 6 महीने बाद मुझे 2 लाख रुपए जमा करने हैं, तो नहीं होता, बहुत प्रेशर में आ जाता मैं। बट अगर मैं रोज देखता कि मुझे रोज 1000 या 2000 रुपए जमा करने हैं, तो वो दैट्स फीजिबल, दैट्स कंप्लीटली फिजिबल। आई वाज नॉट लुकिंग दैट एट फाइनल आउटपुट और फाइनल गोल। व्हाट आई वाज लुकिंग की, अगर आज मेरा प्री बोर्ड का एग्जाम है और आज मेरा अकाउंट्स का पेपर है, तो कैसे मुझे इसमें मोर देन 95% स्कोर करना है। अगर परसों मेरा मैथ्स का पेपर है, तो कैसे कल रात तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं ये सारी चीजें देख रहा था। अगर आज मैं गया हूँ ट्यूशन, अकाउंट्स वाले सर ने मुझे ये एक्सरसाइज कराई, तो कैसे घर आके मैं कल उनके पास जाने से पहले ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँ। ये सारी चीजें मैं देख रहा था। मैं ये नहीं देख रहा था कि क्या मैं 98.4, क्या मैं इतना ला पाऊंगा। आई होप यू गॉट मी। डोंट लुक एट योर फाइनल आउटपुट। वो मैंने शुरुआत, आज भी मैं नहीं देखता। आज भी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कंसल्टिंग इसमें जाना है, मैं अभी भी मैं फाइनल नहीं देख रहा। जैसे मैं बोला कि मुझे नेक्स्ट ईयर MBA करना है, मैं अभी भी नहीं सोच रहा कि मुझे IIM जाना है या फिर IIM जाना है। व्हाट आई एम लुकिंग राइट नाउ, कि अगर मैं कल कैट का मॉक देने बैठूं, तो उसमें मेरे कैसे 95% से ज्यादा आ सकते हैं। आई वॉज लुकिंग एट दैट मॉक। नहीं मैं अभी कैट के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं मैं इंटरव्यू के बाद IIMs में जाने का सोच रहा हूँ। जस्ट लुक एट योर नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस एंड डोंट लुक एट द फाइनल स्टेप, जो कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन, उसको देखो ही मत। अगला स्टेप देखो, बहुत सॉर्टेड चलेगी जिंदगी, ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा, एकदम चिल रहोगे और एंजॉय होगा प्रोसेस। दैट्स व्हाट आई डिड। और यही करते करते डेस्टिनेशन SRCC मिल गई, जो कि मुझे पता भी नहीं थी। दैट्स हाउ आई वर्क एंड आई विल सजेस्ट यू गाइस टू वर्क आउट फॉर। Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot for your question. One step at a time. One step at a time. Very true. Anyone has any other questions? You can go. Hi, Ayush. Hi Fariha, how are you? I'm good. How are you?
Good. Acha, Ayush, I have a question for you. You mentioned about different profiles, right? Suppose abhi currently you're doing an internship at HR, Mm-hmm. and the next internship you want to go for content writing. Mm-hmm. The recruiter will see in your profile that अभी तुम्हारा recent था HR में. How you will crack that content writing वाला internship? I'll tell you. See, you know कि content writing के internship में आपको content create करना होता है, right? और HR वाले internship में आपको resume देखना होगा, screening करनी होगी, interview schedule करने होंगे, offer letter बनाना होगा, right? अगर मैं आपके केस में हूँ और अगर मैं अभी मेरी HR की इंटर्नशिप चल रही है और नेक्स्ट मैं कंटेंट में जाना चाहता हूँ, तो जब मेरा कंटेंट वाले का इंटर्नशिप चलेगा ना, तो अगर वो मेरे से पूछेगा कि तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने पिछली इंटर्नशिप HR में की है. मैं उसको ये बताऊंगा कि पिछली इंटर्नशिप मैंने यहाँ की है और वहां मैंने ऑफर लेटर 100 लोगों के बनाए हैं. तो यू नो कि ऑफर लेटर बनाने में आपका दिमाग, आपकी कंटेंट राइटिंग स्किल्स और आपकी ये सारी चीजें पता चलती हैं, राइट? मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे 200 लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल किया है. मैं उसको ये बताऊंगा कि यहाँ मैंने 100 लोगों का ऑफर लेटर बनाया है और उस ऑफर लेटर के अंदर रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी, CTC, ये सारी चीजें मैंने की हैं. फिर मैंने उनसे कॉल पे नेगोशिएट किया है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन. तो मैं उसको तो आई होप यू गॉट मी. अगर आप दूसरी प्रोफाइल्स के लिए जा रहे हो तो जस्ट मेक श्योर एंड मेक क्लैरिटी इन योर माइंड कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस को आप कैसे उस प्रोफाइल के साथ मोल्ड करके बता सकते हो. इट्स वेरी मोल्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इफ यू वांट टू स्विच बिटवीन इंटर्नशिप्स. तो जैसे मैं स्ट्रैटेजी में शिफ्ट किया था, तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि HR में मैं इंटर्नशिप्स मतलब वहाँ इंटरव्यू शेड्यूल करके आ रहा हूँ. मैंने उसको ये बताया कि हमारे पास कभी जैसे कोई डे ऐसा होता था कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो हमने उसको कैसे सॉल्व किया, क्योंकि मुझे पता था स्ट्रैटेजी में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, राइट? सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल. अगर आप कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हो तो आप उनको ये बताओ कि कैसे आपने HR में कंटेंट का काम किया, जो कि ऑफर लेटर बनाना होता है, उनसे कॉल्स पे नेगोशिएट करना होता है और ये सारी चीजें. एंड नॉट कि मैंने इंटरव्यू शेड्यूल किए, मैं इस कंपनी में काम करके. उनको उससे कुछ मतलब नहीं है. मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए, मुझे इंटरव्यूअर का एक माइंडसेट क्लियर हो गया. अगर उनको बंदा चाहिए, उनको ऐसा बंदा चाहिए जो उस फील्ड में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ला रहा हो. नो मैटर आपने पहले HR स्ट्रैटेजी किसी में भी काम किया हो, अगर आप उनको सामने से बता पा रहे हो ना कि आपने कंटेंट में काम किया और इस तरीके से काम किया, देन दे विल टेक यू इन नो मैटर व्हाट. अगर आपका कंटेंट में, आपके CV में कंटेंट का ही नहीं भी लिखा है, बट आप उनको जस्टिफाई कर पा रहे हो कि आपने कंटेंट में काम किया है जो कि ऑफर लेटर बनाना था, तो वो दे विल जस्ट टेक यू इन विदाउट एनी क्वेश्चन. All right, thank you so much. Molding is the very important skill here. I'll suggest everyone कि अगर आप आगे किसी प्रोफाइल्स में स्विच करने का टारगेट कर रहे हो, तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने बारे में अच्छे से जानते हो और उस चीज को किस तरीके से उस प्रोफाइल के लिए मोल्ड करना है, वो स्किल को बहुत रिगरसली डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट वर्क आउट ऑन इट एंड यू विल गेट देयर. Like, I can say that you really want to help everyone. I can see that. Everyone, yeah. Thank you, Sony. Okay. Do we have any other questions, or we can thank Ayush for all the insights? Hi, brother. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Good, tell me. अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके पास मैसेज भेजा था लिंक्डइन पे कि जैसे मैं उड़ीसा से हूँ. तो मुझे जो बीकॉम करने के लिए जो कॉलेज मिल रहा है वो उड़ीसा के टॉप कॉलेज में से 2nd नंबर पे आता है. और फिर भी वहाँ एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कोई प्लेसमेंट या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता. तो मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ कोर्सेज क्या करूँ या कुछ चीजें कैसे करूँ कि मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो. Got it. So उसके साथ yeah, tell me. और एक क्वेश्चन है कि अभी भी मैं बीकॉम के साथ CA परस्यू कर रहा हूँ, तो मुझे इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहिए या सिर्फ CA पे फोकस करना चाहिए? सी स्मृति, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा वर्कआउट करो और क्लियर करो कि मेन एम क्या है. थर्ड, जैसे 3 साल का कोर्स होता है, आपको तीसरे साल के एंड में अपने आप को प्लेस्ड देखना है या आपको अपने आगे नेम के आगे CFA टैग देखना है.
तो पहले कोशिश करो और क्लियर आउट करो कि इन दो में से क्या मेन इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी प्राइमरी चीज है। लेट्स से प्लेसमेंट अगर प्राइमरी है तो कॉलेज ज्वाइन करो, इंटर्नशिप्स ढूंढने का ट्राई करो और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ढूंढने का ट्राई करना। बट इफ नॉट, जैसे आप बोल रहे हो कि आपका सीएफए में मन है और आपका सीएफए लेट्स से प्राइमरी चीज है, तो इंटर्नशिप्स मत करो, थोड़ा सीएफए वर्कआउट करो, कोशिश करो कि उसका पेपर पहले कैसे क्लियर करना है। जैसे मेरे पास दो चीजें थी, एक तो राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन मुझे एमबीए ज्वाइन करना है या फिर मुझे प्लेसमेंट लेनी है। तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे थर्ड ईयर में पहले प्लेसमेंट लेनी है, उसके बाद मैं एमबीए के लिए ट्राई करूंगा। तो मैंने स्टार्टिंग से ही इंटर्नशिप से फोकस किया। मैंने कैट की प्रेप पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया, मैं इंटर्नशिप पे ज्यादा फोकस कर रहा था क्योंकि मैं बहुत क्लियर था कि मेरे पास दो चीजें हैं और ये मेरी प्राइमरी चीज है। जब तक इसको लेकर मैं पूरा सॉर्टेड नहीं हो जाता मैं सेकेंडरी पे काम ही नहीं करूंगा। तो अगर आपकी प्राइमरी चीज प्लेसमेंट है तो कोशिश करो उस पर जितना अच्छे से मेहनत करके उसको सॉर्टेड कर सकते हो वो करो, उसके बाद अपनी दूसरी चीज पे काम करना चालू करो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है इस केस में पता है, आपके पास दो चीजें होती हैं, आप कभी इस पे काम कर रहे हो कभी उस पे काम कर रहे हो और रात को सोच रहे हो यार मेरा क्या होगा 2 दिन बाद, ये होता है पता है। लेकिन अगर आप रोज एक ही चीज पे काम कर रहे हो और आपको पता है कि आप 1 साल या 1.5 साल बाद ये चीज आपका हो जाएगा डन, फिर आप आधा टाइम उस पर डाल सकते हो, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है राइट, इंस्टेड ऑफ कि 2 नाव पे तैरना और फिर कहीं के नहीं रहना। ठीक है, तो जस्ट पहले बैठो, थोड़ा टाइम लो और ये क्लियर आउट करो कि एम क्या है, प्लेसमेंट लेना या सीएफए करना। दोनों भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि एक एम चूज करो, दो हो सकता है, बट मेक श्योर एक प्राइमरी हो जो आपको एक से पहले अचीव करना हो, विच इज प्लेसमेंट आई थिंक। तो जस्ट मेक श्योर कि कॉलेज ज्वाइन करो, ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स करो, कोर्सेज करो, जैसे मैंने सजेस्ट किया था फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर आपका फाइनेंसेस में इंटरेस्ट है, या फिर और कोई एक्सेल सीखना है, पावर पॉइंट, बहुत सारी चीजें, कोर्सेज करो, इंटर्नशिप्स करो, और कोशिश करो थर्ड ईयर के एंड तक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स ले लो। उसके बाद देन गो फॉर सीएफए की तैयारी साथ में धीरे धीरे करते रहो, बट डोंट फोकस एकदम फुल एफर्ट सीएफए पे। उसके बाद सीएफए करो धीरे धीरे, जॉब चल रही है साथ में सीएफए भी क्लियर होते जा रहा है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, और आई थिंक दिस इज द रोड मैप व्हिच यू कैन फॉलो एज अ स्टूडेंट राइट नाउ। Thank you, Mr. Rudra. If you have any other queries, reach out to me on LinkedIn. I'll be happy to help you there as well. If you guys have any question, you guys can reach out to Ayush on LinkedIn. Like, it has been an absolute pleasure having you as our guest today. Thank you for sharing all your valuable insights and experiences with us. And I Thank you so also much, express my gratitude to all the participants that have been with us today. Thank you, everyone, and have a great day.